کہ اگلی نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے یا آئندہ نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے جو بھی کرنا ہے اسی نسل کو کرنا ہے. تو ہم مذہب کی بنیاد پہ ایجوکیشن کو نہیں سوچتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ ہی کے چینل کے مادھیم سے ہم نے عالمگیر عالم صاحب سے بھی ریکویسٹ کیا ہے, ہم نے ڈاکٹر عرفان صاحب سے بھی کیا ہے, اور پھر جو مائنورٹی کمیشن میں جو چیئرمین ہیں ان سے بھی ہمارے آپ کے مادھیم سے جو ہے بیٹھ کے ہمارا درخواست ہے آپ کے چینل کے مادھیم سے. اور وہ لوگ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں چاہے ان کا کسی بھی کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہوں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے, اس لیے کہ بغیر ایجوکیشن حاصل کیے ہم بہترین سماج کا قیام نہیں کر سکتے. میرا نام طیب اصغر ہوا, سرزمین جمشید پور سے تعلق ہے, اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی, جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علی گڑھ کا اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہا, اور وہاں رہ کر ہم نے یہ محسوس کیا کہ اپنے ملک کو سیولائزڈ کرنے کے لیے, اپنے ملک کو تہذیب یافتہ بنانے کے لیے, اپنے ملک کے اندر بہترین گنگا جمنی تہذیب پیدا کرنے کے لیے, خوشگوار ماحول پیدا کرنے کے لیے, شانتی پوروک ماحول پیدا کرنے کے لیے ہمیں تعلیم کے میدان میں کام کرنا پڑے گا. تب جا کے ہمارے اس ملک کے ہندو بھائی, مسلمان بھائی سبھی ایک دوسرے کو ریسپیکٹ کریں گے سیولائزڈ وے میں, اور ایک خوبصورت ہندوستان بنتا ہوا دکھائی دے گا. اسی کوشش کے ساتھ ہمارا جو ہے ایجوکیشنل موومنٹ ہے, تعلیمی ماحول کھڑا کرنے کے لیے ہر جگہ ہم لوگ جاتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں, اور اسی تعلق سے یہاں بھی کئی پروگرام اٹینڈ کر چکا ہوں. اب میری کوشش ہے کہ تعلیم کی روشنی ہر گھر میں پہنچے. مسلمانوں میں ایجوکیشن کی کمی دیکھی جا رہی ہے, اس کا کیا کارن ہے؟ بہت جگہ آپ گئے ہیں. دیکھیے اس کی جو وجہ یہ ہے کہ پرائرٹی آپ کس کو دیتے ہیں. جی, ہم لوگ ایجوکیشن کو فرسٹ پرائرٹی نہیں دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے اس کے نقصانات ہو رہے ہیں. آپ کے گھر میں 4 تلہ بلڈنگ ہے, 5 تلہ بلڈنگ ہے, آپ کے گھر میں ٹی وی ہے, ریڈیو ہے, ساری چیزیں آپ کے گھر میں نظر آتی ہیں, لیکن آپ کو بچے کو اعلیٰ تعلیم دلانے کی فکر کیوں نہیں ہوتی ہے, اس کو آپ اس کے لیے موٹیویٹ کیوں نہیں کرتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ بڑی تعداد میں بچے ہمارے ڈراپ آؤٹ ہیں؟ تو کہیں نہ کہیں ہمارے اکابرین کی یا کہیں ہمارے وہ لوگ جو ملت کے معاملے میں زیادہ کھل کر بات کرتے ہیں اور صرف یہ ہے کہ سرکار کے اوپر الزام دیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ان کی کیا کوششیں ہیں وہ بھی جاری رہتی ہے. سرکار کا تو خود ایک لٹریری مشن ہے, سرکار اس لٹریری مشن کو آپ آگے بڑھانے کے لیے کتنا آپ آگے آتے ہیں. تو ضرورت ہے کہ ملت کے تمام لوگ اور دوسرے سماج کے بھی لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو انٹلیکچوئلس ہیں, دانشور ہیں, جو سمجھتے ہیں, جو فیصلہ انسانی بنیادوں پہ کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ ہر بچے کو تعلیم یافتہ بنائے تاکہ بہترین انسانی معاشرے کا قیام ہو سکے. لڑکیوں میں بھی دیکھا جاتا ہے تعلیم کے لیے, بہت ہی مسلم میں خاص کر کے دیکھا جاتا ہے کہ بہت کم تعلیم پاتی ہیں لڑکیاں. دیکھیے اول تو ہم مذہب کی بنیاد پہ ایجوکیشن کو نہیں سوچتے ہیں. جو تعلیم پا رہی ہیں, جو بھی لڑکیاں تعلیم پا رہی ہیں, یقینی طور پہ وہ کامیابی کی منزل طے کر رہی ہیں, اور ہمارے یہاں ان کو تعلیم دلانے کا رجحان تو یقینی طور پہ کم رہا ہے. جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ مدر از دا فرسٹ اسکول آف اے بیبی, اور اگر ہم محسن انسانیت اللہ کے رسول کے کوٹیشن بات کو بھی اگر سامنے لائیں تو ایک بات سامنے ہے کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ, یعنی کہ ہر مسلم مرد پہ فرض ہے, ہر مسلم عورت پہ فرض ہے. تو تعلیم تو دونوں کے اوپر فرض ہے. تو کہیں نہ کہیں ہمارا سے کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے لڑکیوں کو بڑے پیمانے پہ تعلیم نہیں دیا, نہ ہی ان کے لیے بڑے پیمانے پہ تعلیمی ادارہ کھولا, اور نہ ہی ایک ایسا مدرسہ آپ دکھا دیجئے جہاں لڑکیاں بڑی تعداد میں پڑھ سکے. نہ ان کے لیے بہترین کالج کا انتظام, نہ ان کے لیے بہترین اسکول کا انتظام. البتہ یہ ہے کہ ہم بہت اس معاملے میں بہت تیز ہو جاتے ہیں کہ ان کے اوپر بدچلنی کا آپ الزام لگا رہے ہیں, ان کے اوپر آپ بد تہذیبی کا الزام لگا رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ گارجین ذمہ دار ہے کہ نہیں اس چیز کا. اور جو دانشور طبقہ ہے, ایک سر سید علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کر کے چلے گئے, پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ کا قیام ہوا, پھر اس کے بعد جا کے جو ہے جامعہ ہمدرد کا قیام ہوا. آپ اپنے شہر میں ایک بہترین کالج بھی نہیں قائم کر سکتے, جبکہ آپ کے پاس نہ دولت کی کمی ہے, نہ کسی چیز کی کمی ہے. آپ صرف دوسرے کو آپ الزام دینے کے لیے آپ یہاں پر موجود ہیں. آپ کو آگے بڑھ کے نکلنا ہوگا. لہٰذا اس شہر کے تمام اکابرین کو, تمام دانشور طبقہ کو, تمام پروفیسرز کو, تمام ٹیچرز کو, اور انسانی بنیاد پر سوچنے والے تمام لوگوں سے ہماری درخواست ہے ایک بہترین تہذیب کے ماحول میں لڑکیوں کے بہترین کالج کا انتظام کیا جا سکے, تاکہ فرسٹ
स्कूल ऑफ ए बेबी को मजबूत जब होंगे तो आइंदा नस्ल यकीनी तौर पर पढ़ी लिखी होगी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में आज जिस तरह से लोगों ने जो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसरो के अंदर जो इन लोगों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ये बड़े पैमाने पर नजर आएगा। इससे फायदा ये होगा कि हमारा मुल्क सुपर पावर बनेगा। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी की बात चल रही थी, तो सिर्फ लफ्ज़ों में रह जाएगी या उस पर काम होगा? देखिए, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के ताल्लुक से अब हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं जी, हम लोगों ने उनसे अपील किया है जो इख्तिदार की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। और आपने देखा होगा, आप ही के चैनल के माध्यम से हमने आलमगीर आलम साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, हमने डॉक्टर इरफान साहब से भी किया है, और फिर जो माइनॉरिटी कमीशन में जो चेयरमैन हैं उनसे भी हमारे आपके माध्यम से जो है बैठ के हमारा दरख्वास्त है आपके चैनल के माध्यम से। और वो लोग जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे उनका किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हों, जो ये समझते हैं कि हर शख्स को तालीम हासिल करना चाहिए, इसलिए कि बगैर एजुकेशन हासिल किए हम बेहतरीन समाज का क़याम नहीं कर सकते। लिहाजा उनसे हमारी दरख्वास्त है कि चूँकि मौलाना आज़ाद रांची में कैद थे, बहुत दिनों तक उनका गुजर हुआ है और एक तारीख़ी हैसियत है उनकी, फ्रीडम फाइटर है वो, और नहीं छोटे मोटे फ्रीडम फाइटर नहीं है, ज़िंदगी कुर्बान कर दिया है। अगर हम उनकी तारीख को मौलाना आज़ाद का बयान करने लगे आपके सामने तो फिर यह है कि एक लंबा चौड़ा वक्त निकल जाएगा, बैठ के उसके पास वक्त नहीं है। लिहाजा झारखंड की सरकार से हमारी गुजारिश है कि आप मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का क़याम हो और इस सिलसिले में आप अपना कदम उठाएं। आज के मुआशरे में अक्सर देखा जा रहा है कि नौजवान जो है सो नशा की ओर ज़्यादा इनका रुझान है और तालीम से इनका बहुत दूर दूर का रिश्ता नहीं हो रहा है। तो इस तालीमी मेयार को सुधारने के लिए आप क्या मैसेज देना है? देखिए, उससे पहले हम आपको एक मिसाल देना चाहेंगे। मैं जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया का स्टूडेंट लीडर था तो पंजाब यूनिवर्सिटी लुधियाना में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ जिसमें मुझे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहाँ भेजा गया था। और इत्तेफाक से हमारे किसी दोस्त को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो उसके तलाश के लिए जब हम लोग पूरे कैंपस में निकले हैं लुधियाना पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो किसी दुकान में ये चीज़ नहीं मिली। बस मालूम हुआ कि जो है न लोग पसंद करते हैं वहाँ पर, और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी ज़बरदस्त पाबंदी है और वो चीज़ नहीं मिली। तो उन्होंने कदम उठाया, उसके ऊपर ठोस कदम उठाया। आवाम ठोस कदम नहीं उठाती है, आवाम सिर्फ तनकीद करती है। गार्जियन ठोस कदम नहीं उठाता है, गार्जियन सिर्फ तनकीद करता है। आप ये देखिए कि अभी मुआशरे के बच्चों का हाल ये देखिए कि बाल अभी बच्चा 21 बरस का है, 22 बरस का है, 24 बरस का है, और करम है कि उसका बाल अभी पूरा काला है, उसको कभी वो आधा हरा कर रहा है, आधा पीला कर रहा है। इंसान का बच्चा जानवर की शक्ल में घूम रहा है बैठ के, और उसको जो है ना गार्जियन टोकता है, ना मुआशरा टोकता है, ना ही बैठ के खुतबे में उनके खिलाफ किसी किस्म की मजम्मत सुनाई देती है। तो कौन सा समाज हम खड़ा कर रहे हैं? संजीदगी लाने के लिए संजीदा लोगों को सामने आना होगा मुआशरे के अंदर में। और आप लोग तो मीडिया के लोग हैं और एक इम्पॉर्टेंट रोल आप प्ले कर सकते हैं इस सिलसिले में। हम चाहते हैं कि आप लोग जो है बैठ के ज़बरदस्त तालीमी कॉन्फ्रेंस करें और अच्छे लोगों को जोड़ें, और कम से कम ये है कि एक बेहतरीन तालीमी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खड़ा करें जहां हमारे बच्चे बच्चियां हर तरह के तालीम से मुज़य्यन हो सकें। आज के दौर में उर्दू अदब की बेहतरी के लिए और तालीमी निज़ाम को ऊंचा बनाने के लिए जो है सो आज के उलमाओं का, खासकर उलमाओं का इसमें क्या किरदार है? देखिए, उर्दू के ताल्लुक से मुल्क में दानिश्वर तबका है जो बहरकैफ उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, चाहे वो मुशारे के स्टेट से कर रहे हो चाहे, लेकिन दिन ब दिन जो है बैठ के उसको मकबूलियत तो है, बैनुल अक़वामी लेवल पर है। उर्दू का मुशारा जो है बैठ के अमेरिका में भी हो रहा है, फ्रांस में भी हो रहा है, आपका जो है बैठ के दुबई में हो रहा है, दूसरी जगहों पर हो रहा है। हिंदुस्तान में हर जगह मुशारा दिखता है, मुशारा होता रहता है। बड़ी तादाद में जो है मुस्लिम हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई जो कि शायर हैं, उर्दू के बड़े बड़े शायर हैं, ये तमाम लोग जाते हैं और आपको उर्दू की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा घर के अंदर जो गार्जियन बैठा हुआ है वो बच्चे के अंदर में उर्दू की किताब हाथ में नहीं देगा, वो बच्चे को उसके लिए मोटिवेट नहीं करेगा, तो फिर उर्दू आगे बढ़ेगा कहाँ से? लगता नहीं है कि दिन ब दिन मदरसे खुल रहे हैं, एजुकेशन का हाल वही है? नहीं, देखिए मदरसा तो खुल रहा है, तो जो लोग दीनी माहौल रखते हैं और जो समझते हैं कि भाई हलाल और हराम की भी तमीज़ बाकी रहनी चाहिए, तो उसके लिए मदरसे का क़याम है और मदरसे के अंदर में अल्लाह की जो किताब है वो पढ़ाई जाती है।
मदरसों में क्या क्या ऐड होना चाहिए, जैसे कि मदरसे उसमें उसके साथ अगर वो CBSE पैटर्न की किताबें ऐड कर दें, उसमें खास के अंग्रेज़ी और साइंस और की तालीम को अगर वो ऐड कर दें, तो वही मदरसा जो है एक बेहतरीन खिदमत अंजाम देते हुए दिखाई देगा। एक ऑलराउंडर एजुकेशनल माहौल कायम होगा चारों तरफ बैठ के। तो फिर ये है कि हर मदरसा जो है बैठ के मदरसे के अंदर जब ये एजुकेशन मिलेगा, जहाँ दीन और दुनिया दोनों एजुकेशन एक साथ मिल रही है, जैसा कि कहना होता है। हालांकि हम दीन और दुनिया नहीं मानते, एजुकेशन है। जिस एजुकेशन से इंसान को फायदा हो और इंसान को इंसान बनाता हो, वो एजुकेशन हासिल करना चाहिए। लिहाजा मदरसे के अंदर भी जहां वो अपना पढ़ा रहे हैं सिलेबस, बेशक अपने सिलेबस पर वो पढ़ाएं, उस सिलेबस के साथ साथ अगर उन्हीं बच्चों को वो अंग्रेजी भी पढ़ा देते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी उन्हीं बच्चों को कमांड भी अगर हो जाता है, तो यकीनी तौर पर इससे हमारे मुल्क को बहुत फायदा होगा और हम मुल्क अपने हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत कर पाएंगे। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए आज के दौर में, क्योंकि माहौल खराब है, बच्चों पर तालीम पर जोर देने के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? निगाह रखना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा बच्चा किस राह पे जा रहा है, और घर पर बच्चा आता है तो वो कौन सी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। और मेरा तो अपना ये मानना है कि हालांकि हमको हिंदी से भी प्यार है, अंग्रेज़ी वर्ल्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज है उससे भी प्यार है, लेकिन उर्दू चूँकि हमारी मादरी ज़बान है और उर्दू ज़बान के अंदर संजीदगी है, तहजीब है, बड़े या छोटों का अदब है। जब तक हम अपने बच्चों को उर्दू ज़बान से आरास्ता नहीं करते, हमारे बच्चे, आइंदा आने वाले बच्चे हमसे तहजीब से गुफ्तगू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसकी फिक्र है। आप 4 तल्ला 5 तल्ला बिल्डिंग तो बना रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा एक जाहिल की तरह, एक बदतमीज़ की तरह गुफ्तगू कर रहा है, तो शायद बुढ़ापे में आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। जिस तरह का बच्चों में मोबाइल का प्रचलन चल गया है, गार्जियन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये तो बड़ा अफसोसनाक मामला है और हर गार्जियन यहाँ पर कमज़ोर पड़ रहा है बैठ के। क्या अगर मान लीजिए कि हमने सख्ती कर दी, हमारे मौजूदगी में अगर बच्चे हमने मोबाइल नहीं दिया, तो मालूम है कि मोबाइल को माँ बढ़ा देती है और वहाँ पर रोकना बड़ी मुश्किल हो जाता है। या अगर हम घर पर हैं तो बच्चे तो मोबाइल से परहेज कर रहे हैं, जैसे घर से बाहर निकले किसी न किसी, इसलिए हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और ये मोबाइल यकीनी तौर पर नुकसानदेह है। गार्जियंस को चाहिए कि कम से कम छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं दें, क्योंकि मोबाइल एक खिलौना नहीं है। बच्चे जब बड़े हो जाए, मैच्योर हो जाए, तो फिर यकीनी तौर पर आज के दौर में मोबाइल एक बेहतरीन तोहफा है जिसका सही इस्तेमाल किया जा सकता है और दुनिया के तमाम न्यूज़ को और उसकी खबर को आप मोबाइल के ज़रिए जो है आप जाके जो है गूगल्स में जाके आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये बच्चे जब बड़े हो जाए, मैच्योर हो जाए, इसकी अहमियत को समझ पाए, तब उनके हाथ में मोबाइल दे सकते हैं आप, लेकिन बच्चों के हाथ में मोबाइल देने से परहेज करें।